Myself, Dr. Manjiri from Nagpur. I welcome you all on behalf of Ignited Mind by PHF to this wonderful series Guruji Ke Saath Gurwar 2.0 that was started 10th April on 10th April 2021 under the mentorship of our Guruji Dr. Liaquat Namole sir. I would like to share few words about PHF, which was founded by Dr. Liaquat Namole sir with the vision to educate homeopaths and transform GP to homeopathy again. And he is successful in transforming more than 2,000 GPs towards homeopathy. We organize various activities regularly so that we can reach maximum homeopaths who are not able to practice homeopathy due to lack of knowledge, proper guidance. Ignited Minds by PHF is a pioneer group for free learning of homeopathy. First started on WhatsApp and then on Telegram. Now about 3,000 doctors are learning daily on our Telegram group. Recently, we completed free webinar series of 100 lectures on Zoom, which available on our YouTube channel, that is Ignited Minds by PHF. Uh, our Guruji, Dr. Liaquat Namole sir, practicing since 31 years and guiding us through lectures and our Telegram group also. And we have started a new series of lectures. What women want. This is our new lecture series to explore a woman's heart, emotions, and needs to be able to heal her. We have already shared few emotions in past 5 lectures, and today we are exploring another emotion with case study with our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. Sir, please start your lecture and guide us. Thank you, madam. Thank you, Manjari. Thank you for the introduction, and thank you guys for being here. It's another case of an woman, of course, because we are learning. We are studying this woman's heart. Okay, what women want is my another child. I wanted to really understand the woman's heart through homeopathy because I have been able to understand emotions actually and the mind of a person through homeopathy, especially through repertory and the mind symptoms that we get in the provings, also by cure and by and by understanding and try to understand the meaning behind the meaning, read between the lines as as I write poetries and short stories also. So it's my passion, hobby, you can say. So I'm sharing whatever I've understood in my life through my cases and through my colleagues' cases. So this is a case of a female, 42 years, premenopausal, or you can say menopausal. She came to me with in sari, very pretty looking, very much dusky look like that of Kajol. You can say she used to be Kajol that time, that type of complexion, shiny skin, a little bit of shiny skin. Maybe it was because of the cream that she had applied. I am telling you all this because to make you understand that how to look at the patient. Okay, so little shiny skin. थोड़ा सा look उसका hairstyle was my favorite actress like Nadita Das. Okay, so I remember, and she was wearing gajra also पीछे बाल short थे लेकिन गजरा पहना हुआ था मोगरे का गजरा पहना हुआ था ठीक है this was like some 5 years back this case yeah 2022 yeah 3 years back okay so I said okay tell me she said sir I have this anemia my hemoglobin is never been more than 8 or 7 never been 8 was like after I had taken injections during pregnancy so even in pregnancy I had to take the injections I get this giddiness very often sir
this kidney is very often a patient of mine referred her to me. Okay, so so I was like, tell me. Yes, I said, tell me about you and your family. Because I said, why her hemoglobin is not increasing, you know? So I asked her whether your hemoglobin is less since before in life or since marriage. So she said, sir, I checked it when I got pregnant. So I'm not sure whether this is since before marriage or after marriage. So I said, tell me about you and your family. Okay. So she said, all good, sir. My husband is inspector and he's a handsome gentleman. Uh, she showed me the photograph also of him. I said, okay. So, and she said, sir, I said, tell me about people who live in your family. So, in my family, sir, my husband is there. I have two kids. My daughter is now 12 years. Younger one is 8 years. I have my father-in-law with us and my co-sister and Devarji, they're staying little far away from us. My mother-in-law passed away 2 years back, 3 years back, sorry, in COVID. So in the first wave of COVID, her mother-in-law passed away. Okay. I said, okay. Any stress? No stress, sir. All is good. No stress, sir. Nothing. My husband is very caring. He's a gentleman. He's non-corrupt. Yes, because of that habits of his, he gets a lot of what is that called as transfers. Okay, but now he's posted to what is that area called as in near Nagpur. So he's there now. He said he's there now. I said fine. Okay. So I said how is his nature? He's very strict, you know, sir. पुलिस वाले कैसे होते हैं ना आप जानते हैं. So he's very strict, but he's very loving. He loves me. He takes care of me. But he's very demanding, sir. He's small things he gets irritated. He shouts at me, small things. Even at the kids, he started shouting now. I said he must be frustrated better because he's non-corrupt and all. Yes, sir, I understand. So I have no complaints about him. Just because you asked, so I said, I said, fine. I said, tell me about your maternal. So, sir, maternal, I come from a very decent family. My father was a teacher. He's retired now. He's a very gentleman, sir. My mom is very prettier than me. I said, I didn't even ask her. So she's prettier than me. She's a housewife. She's a very good housekeeper, sir. She has loved us. We are three sisters, sir, and my brother, one brother. So she has taken care of us. Though we had less money in our family, but we were taken care of by, we were taken care of very well. I said, fine. So I was trying to understand where is the bleeding happening. And yeah, she said, I said, tell me about your menses. She said, sir, I bleed a lot. I bleed a lot. And yes, I forgot to tell you, I have fibroids also, Dr. Sir. For that only I've come to you. See, I'm so forgetful, sir. I forget things. Nowadays, I've started forgetting things, sir. See, I'm not remembering the name of my friend who has referred to you. And then she said, yeah, her name is Sangeeta. I said, okay. So I said, tell me, how do you cope up with this giddiness or how is it affecting you? Yes, sir, it is affecting me. I don't feel like working. I work day in, day out. I work a lot, but nowadays I don't feel like working. And I don't have confidence as such as he's a doctor. So I said, are you practicing? I do practice in my house, and I have a separate cabin uh, in the veranda. Okay. So, but I don't sit there much. I don't have confidence, that much of confidence. I get scared
to see the patients. Sometimes I forget the prescription as to what should I write. She's a BMS girl practicing GP. So many times I forget the name of the medicine. So what I do, I see in the mobile and then I write many times. So I have written मैंने अभी prescription के format बना के रखे sir, and I see that and I then prescribe. So this happens to me. I said, this is happening since when? Sir, this is happening since a lot of time. Some 3 4 years after marriage, this has started happening. I said, how is your father-in-law's behavior? Good, sir, but I said, you have to share things with me, please. I said, especially after your mother-in-law died, how is he? Sir, please don't share this with anybody. He's a very dirty man. He watches all those songs, where the girls are dancing and all. He's watching all the time that. And then he looks at me also very, when I passing in the hall, I go to serve him tea and all. He looks at me in a very dirty way. So it disturbs a lot to me. I said, did you speak to your husband? Sir, I'm scared of him. But I did see, sir, I cannot be that rude because he has nowhere to go. He doesn't. I said, you have a co-sister and Devarji also. So yes, sir. But he doesn't go there. He is a very strict man, like his son. So the other, my co-sister doesn't allow him to come there also, sir. So he likes to be here because I serve, I give him food, I make good food for him. He drinks twice, thrice in a week. So I make him non-veg and eggs and whatever demands he's making about food, I make. So this I used to do before when my mother-in-law was also there. So I used to make good food and all. That time he was not like that. So I used to make all that. So he's now become used to the service that I gave in the house. And now my husband, I cannot tell more because he's a very hot-tempered man. What if he does anything to his father? And then how will he trust? पहले तो मेरे को खुद का उनका डर लगता है सो तो मैं उनको कैसे बोलूं? ओके, फाइन। तो सर बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बैठी रहती हूँ क्लिनिक में, मैं बस ऐसे ही बैठी रहती हूँ। एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, सर वंस अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी दैट व्हाई डू यू सिट लाइक दिस संगीता, आई मीन अनीता, नेम वाज अनीता, व्हाई डू यू सिट लाइक दिस अनीता? I said, yeah, I sit like this sir, for hours together in my gallery. I sit like this. I look at my flowers and trees, and sometimes I'm just looking like that. I'm just seeing. I said, what do you remember? What exactly do you think? Sir, these people have been very rude to me. My mother-in-law also was very rude to me. My father-in-law is also very, they don't speak in a good language. The language is very filthy. They abuse a lot. उनके मुंह में सब दिन रात गाली होती है। मेरे हस्बैंड का तो मैं समझ सकती बिकॉज पुलिस। तो सर मुझे बिल्कुल यहाँ पर समाधान नहीं होता है, मन नहीं लगता है सर। कई बार मेनी टाइम्स आई फील दैट आई गो मैड। मेनी टाइम्स आई फील दैट आई गो मैड सर। आई गेट इरिटेटेड very much. So I sit quiet, sit in the gallery many times. And then sir, my husband calls and then on phone also he yells. I do everything for sir. I fulfill all his demands. He comes twice a week home, like he comes Saturday, Sunday. He's got transferred, so I feel good that he's got transferred. So when he was here in my town for 3 years, it was horrible. Since marriage, I said, why didn't you talk to your parents? I said, what will I? She said, what shall I tell my parents? They'll get worried. And I chose him, na sir. My father had suggested three proposals, so I chose him. Looking at him, he's handsome and he's the man I would have, any woman would like, would desire. He's very handsome, sir. So I chose him. My mother had suggested somebody else. My father was also insisting on saying he's a policeman. Maybe his nature won't be good. So my father had suggested a teacher to me. I said, "Hey, teacher से क्या शादी करने का? I'm a doctor. I need somebody of my level." So this man is a PI inspector, handsome, tall. He's 6 feet 2 inches, sir. You will see, you will like him. I said, yeah, I saw his photograph.
So he's that, sir. This is the thing. I said, how does your husband talk to you? He's always yelling, he's fault finding, and even my co-sister, my brother-in-law, or they never say anything good about me, sir. On my face also, even behind, they don't even recognize what I'm doing for them. They'll be being a doctor. Many times there is no maid, so I wash all their clothes. I do housemaid work many times. So nowadays housemaids you don't get. So even if the housemaid is there, we have washing machine. So I do not let the housemaid wash the clothes because my husband likes very clean clothes. So I do it in washing machine and then I iron their clothes. Even both the kids, I iron their clothes. My father-in-law's clothes also I iron. This is the case. Okay, come on. You all can unmute and talk to me now. Hello. Hello. You can unmute and speak. गुड आफ्टरनून भाई। Good afternoon. ये बहुत सेंसिटिव लगी टू द रूडनेस एंड सेक्सुअली अब्यूज भी कह सकते हैं, और यील्डिंग लगी कि कुछ नहीं बोल रही है, और रूडनेस के लिए शी इज़ नॉट अप्रिशिएटेड वट एवर शी इज़ डूइंग। तो ऐसे तो और यही रीज़न है कि उसका फाइब्रॉइड भी है। शी इज़ नॉट गेटिंग द लव एंड अफेक्शन शी वांटेड, और वो वापस भी नहीं जा, मतलब पेरेंट्स को भी नहीं बोल रही, केयर्सफुल ऑफ अदर्स में भी है कि सबकी डिमांड पूरी कर रही है एंड उनके बारे में सोच रही है कि उनको बुरा लग जाएगा टाइप्स। ये मैंने समझा। Okay. Good. Very good. और कुछ? Very nice, बेटा. So what is her desire? क्या चाहती हो? है ना? क्या चाहती है? ये सब जो कर रही है उसके एवज में उसे क्या चाहिए? है ना? रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं। Okay. Good. सर जिस तरह से वो बाहर बैठ के गैलरी में बैठ के देखती रहती है, तो ऐसा लगता है कि उसको शांति चाहिए, इसीलिए वो वहां जाके बैठती है और पेड़ पौधों की उधर देखती रहती है। बराबर. इसीलिए मैं पांडव लेना चाहता हूँ तुम्हारे इधर लेने में. बुद्धि लेने में इसीलिए जाता हूँ. यस. तो क्वाइट वांट्स टू बी, नहीं? क्या चाहिए उसको? क्वाइटिट्यूड चाहिए ना? क्या चाहिए उसको? शांति चाहिए ना? यस सर। ओके. और क्या? और क्या चाहिए? तो इसका जो नेचर है ना, यील्डिंग तो है, पर मुझे ना थोड़ा अलग लेवल का यील्ड लगा कि वो ससुर जी इतना परेशान करते हैं, फिर भी वो है ना, थोड़ा सा अजीब लगा मुझे कि वो सहन कर रही है सब चीजें। हम्म. हम्म. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या उसके लिए रूब्रिक लूं, पर वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही यील्डिंग लगी, कुछ यील्डिंग हम्म. से भी ऊपर लगी कुछ। एक्चुअली बहुत ज्यादा सहन शक्ति है ना उसमें. हाँ। बहुत ज्यादा सहन शक्ति है. यस. इत, इतना उसको क्या काम भी लेंगे? कर रही है। इसको क्या बोलते हैं? पेशेंस। हाँ. पेशेंस सर। पेशेंस. परफेक्ट. समझे? हम्म। दिस इज कॉल्ड पेशेंस. हेलो. अंडरस्टूड ना? यस सर। दिस इज कॉल्ड पेशेंस. वेरी गुड. ये यहां से एंट्री मैंने लिया केस. ठीक है. मैं बोला इसमें सबर बहुत है. राइट ना? हेलो. यस यस सर। सर। हाँ. ये लड़की में क्या है? इसकी मेन क्वालिटी क्या है? सबर. अंडरस्टूड? यस सर। यस. और वेरी गुड, वेरी गुड. ये सब सर सहन करके इसी दिखाई. वजह से, जी. क्योंकि ये पेशेंस वाली है और बहुत माइल्ड भी लगी।
कि इतना होने के बाद भी कोई ऐसा किसी को बोल नहीं रही है और सबका कर रही है, अपनी पूरी हम्म, ड्यूटी निभा रही है। तो माइंड में एक थिंकिंग कैली सेल्फ की भी आई क्या लगा? कि कैली सेल्फ, काली काली सल? सिर, वाई हाँ, वाई वाई काली सल? कि पेशेंस वाली है ना, और इतनी माइल्ड भी है और सबका कर भी रही है। मतलब फादर इन लॉ का इस तरीके का रिएक्शन है, फिर भी उनका कर ही रही है ना, हस्बैंड को भी नहीं बता रही है कि फालतू में घर में कोई इशू हो, वो हॉट टेम्पर का है। तो मुझे इसलिए लगा फिर कि ये बहुत माइल्ड है और इसको प्रॉब्लम यहीं से हो रही है कि हम्म अब घर में ही ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, तो अब क्या बोलूं, किसी को बोल भी नहीं सकती। तो इसलिए मुझे लगा कि ये कैरी सेल्फ तो नहीं है। ओके। और कोई? और कुछ? देखो कैसे चलना है, कैसे, हाउ टू रियली यू नो एनालाइज दिस केस, हाउ टू एनालाइज दिस केस, टेल मी। और जो उसके सिम्टम्स है बाकी के, उसको तुम कैसे लोगे? हेलो? हेलो? जो भूल जाती है चीजों को, उसको तुम कैसे लोगे? हेलो? क्योंकि इंटेलेक्ट अफेक्ट हुआ है ना। हेलो? वो एनीमिया में तो थोड़ा कॉमन भी है ना, एनीमिया में कंफ्यूजन ऑफ माइंड होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। हर एनीमिक पेशेंट को होता है क्या एब्सेंट माइंडेडनेस? नहीं, एब्सेंट माइंडनेस तो नहीं होता, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्लो। एब्सेंट माइंडेडनेस ओनली, सो व्हाई डिड यू टेक दैट रूब्रिक? हेलो? मैं वही देखो, क्या है, क्या बोला है डॉक्टर केल साहब ने, क्या बोला हुआ है? हाउ टू बी एनालाइज? पिक्यूलियर माइंड, सिम्टम्स। इंटेलेक्ट, इमोशंस, राइट? क्या है? मेमोरी, इंटेलेक्ट, इमोशंस, राइट? सबसे ऊपर क्या है? माइंड। मेमोरी, इंटेलेक्ट, इमोशंस, राइट? तो सबसे राइट। पहले कौन सी रूब्रिक, अगरचे फॉरगेटफुलनेस है तो सबसे पहले वहां जाना है, मेमोरी वाले रूब्रिक सबसे पहले लेना है। मेमोरी, इंटेलेक्ट एंड इमोशंस, बराबर ना? क्या है, कैसे दिया है? आप लोग नहीं पढ़े हो, केन्स फिलोसफी नहीं पढ़े? तो विल, सबसे पहले हम जाएंगे, हाँ बेटा, विल, इंटेलेक्ट एंड इमोशंस, वेरी गुड। तो अभी इसका विल का क्या है, तो इंटेलेक्ट में क्या आएगा? तो विल के दो पार्ट बनाए ना। हेलो? विल के पार्ट किए हुए ना। हेलो? तो पहले देखो अपन क्या लेंगे, एब्सेंट माइंडेड, बराबर है? हेलो? एब्सेंट माइंडेड में क्या रूब्रिक लेंगे, बोलो अभी, चलो। एब्सेंट माइंडेड में क्या रूब्रिक लेंगे? हेलो? एब्सेंट माइंडेड है ना, भूल जा रही है ना चीजों को। इम्पोर्टेंट चीजें भूल जा रही है सर, जैसे प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। एग्जैक्टली, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इन एडवर्टेंस करके लेंगे क्या सर? एब्सेंट माइंडेड इन एडवर्टेंस। इन एडवर्टेंस, इन एडवर्टेंस के अंदर कैसा होता है ना, बाकी की चीजें भूल रही क्यों? हस्बैंड की, नेम भी भूल गई थी ना अपनी फ्रेंड का, जिसने उसको भेजा। हाँ 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 हाँ। तो वो क्या बहुत खास चीज है क्या, हस्बैंड की हर चीज का ध्यान रख रही है ना? हाँ? हस्बैंड का तो है। तो तो बिजनेस के रिलेटेड उसको प्रॉब्लम आ रहा है ना। हम्म क्या करती है उधर बैठ के, क्या करती है बैठ के क्या करती है सोचते बैठी है ना, हम्म है ना? अच्छा, ये लड़की दुखी है कि सुखी है, दुखी है, कि नाखुश है? अनहैप्पी है सर, खुश तो नहीं है।
हाँ, तो सैडनेस और अनहैप्पीनेस ये दो आएंगी चीजें, बराबर ना? हम्म, तो वी विल सर्च द rubrics फ्रॉम सैडनेस, राइट? We will search the rubrics from absorbed, buried in. Why does she forget things? Because she is absorbed, buried in thoughts. है ना? क्या बोली उसने? मैं सोचते बैठती हूँ सर, बराबर ना? yes sir. और कोई anybody wants to really analyze it, really with all your wits and intellect and knowledge, whatever you have learned from the college, from the books. देखो, आई वॉन्ट रिमेम्बर, इट्स ए वेरी सीरियस बिजनेस, प्लीज। मतलब जस्ट ले लिया, रूब्रिक डाल दिया, आपने पेशेंस पकड़ा, बहुत अच्छा किया। ये बहुत अच्छी चीज आपने की कि ये मंजू ने बोला ना, ये कि बहुत अच्छा। मतलब इतना सब्र कौन कर सकता है? सिर्फ पेशेंस वाला कर सकता है। वो कहीं भी चिढ़ नहीं रही किसी से, सबसे प्रेम से पेश आ रही है, बराबर ना? इसको मैंने एक रेमेडी दिया था पहले, कार्सिनोसिन, जिससे इसको पार्शियल रिलीफ मिला। ठीक है, उसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था, मैंने हीमोग्लोबिन तो बढ़ना चाहिए भाई, बराबर ना? क्योंकि अपनी दवाई से हीमोग्लोबिन तो बढ़ना ही चाहिए किसी भी हाल में। मेरे एक पेशेंट का 5 से, आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे कि 5 से एक पेशेंट का हीमोग्लोबिन 11 हुआ है, विदाउट विदाउट अ सिंगल आयरन पिल। बिकॉज उसको आयरन पिल से नौशिया होता था, कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, ब्लीड करती थी स्टूल से, तो और डर गए, अरे भाई नहीं, ये नहीं चलेगा। विदाउट आयरन इंजेक्शंस नथिंग, नॉनवेज ऑफ कोर्स, या थोड़ा बहुत खजूर वगैरह, यस, जो कि वो पहले भी खाती थी, मुस्लिम गर्ल। फ्रॉम 5, hemoglobin from 5 went up to 11 in 2 months। पहले 8 हुआ था, उसके बाद 11 हो गया। तो मेरे को उस वक्त लगा कि मतलब ये हेमेटोनिक वगैरह जो अपन प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेगनेंसी में वगैरह, ये सच में जरूरी है क्या? है ना? तो हीमोग्लोबिन तो बढ़ना चाहिए, प्लीज रिमेम्बर। और चलो थोड़ा सा और, लेट अस बी लिटिल इंटेलेक्चुअल। नो, shall I tell my analysis now? Anybody wants to give it a try? मानसी, मानसी को तो पता है। और कोई? सर ये लोग बातें भी ऐसी करते हैं ना, इनकी भाषा भी हमेशा गाली गलौज की होती है सर, इनसे किससे बातें करें? मेरी को सिस्टर भी इतनी कुछ ये नहीं है सर। देवर जी तो एक कंपनी में काम पे जाते हैं, इंजीनियर है, प्राइवेट जॉब करते हैं। को सिस्टर मेरी कुछ नहीं सर, चीज ओनली बीएससी पढ़ी हुई सर, पर उसको कुछ इतना बातें भी नहीं आती सर। दोस्तों से कभी कभार कर लेती हूँ सर, लेकिन आजकल क्या ना, ही कुकू कुकी की बातें चलती हैं। तो कॉलेज के ग्रुप पे भी सब वैसी बातें चलती थी, तो मैं उसमें भी नहीं पढ़ती हूँ। टेल मी। हेलो, बोलिए। आपने एक चीज नहीं याद रही है आपको, कि मेरे लेवल का तो दो है, टीचर का क्या? मेरे लेवल का कुछ दो, जबकि उसका बाप टीचर है। हेलो। Yes, sir. हाँ, वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? और Extravagance. माइल्ड क्यों लगा आप लोगों को? व्हाई डिड यू फील माइल्ड? ये माइल्ड रूब्रिक आप इतना इजीली यूज कर लेते। हाँ सॉरी, वो क्या क्या आपने, somebody was saying something, was it? Sir, me Manjiri. Sir, हाँ मंजू बोल। हाँ बेटा। extravagance. नहीं, उसको अपने लेवल का चाहिए था ना। फिर या तो अपने को ग्रेट समझ रही है, डिलीजन क्या? ट्रेट। अपने को ग्रेट समझ रही है कि मेरे लेवल का होना चाहिए। अगर वो अपने आप को इतना ग्रेट समझती तो इतना सबका सर्विस वगैरह करती है। इगोटिज्म। सुपी ईगो कहीं और छलक लाएगा लेकिन उसका। ये जब इंसान एक्सक्लूसिव। ऐसे में कहते हैं, वहां पर ले कंटेम्प लेगा हॉटी, कंटेम्प अच्छा हॉटी। सिंपली हॉटी। दिस इज सिंपली हॉटी। ओके, यस सर। ठीक है, चलो। हाँ, गजरा लगाए तो पल्लू ने क्या, पिल्लू ने क्या बोली कि
वैनिटी, गजरा लगाना वैनिटी नहीं यार, कम। गजरा तो यार कम। गजरा तो कितनी अच्छी चीज है, उतना तो सजना सवरना चाहिए थोड़ा बहुत तो बोले थे यार। तुम्हारे पास आर्काइव बुक्स है ना? हाँ। तुम्हारे पास आर्काइव बुक्स है ना? हम्म। ठीक है बेबी। सॉरी, सॉरी। आर्काइव में ना हाँ। होंगे। कौन है भाई? घर की बात है। चलो बोलिए। हाँ, चलो मैं करूँ, एनालाइज करूँ। और किसी को कुछ बोलना है? हेलो? नहीं? चलो। So I took absorbed, buried in thoughts. Absorbed, buried in thoughts, sadness indulges in. Absorbed, buried in thoughts, sadness indulges in. ठीक है? Then I took anguish, pain with. मुझे ऐसा लगा कि इसको बहुत दर्द में है ये। मुझे इसकी पीड़ा समझ में आई कि ना यार, ये लड़की सबका कर रही है कि दिस इज, शी इज इन एंग्विश। उसका दर्द है ना ये। एंग्जाइटी विथ यूट्राइन इमेज, ऑफ कोर्स अटेंशन डिजायर्स। जो वैनिटी आप लोग ले रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा शी डिजायरिंग अटेंशन, क्योंकि हस्बैंड हैंडसम है। उसको हैंडसम हस्बैंड चाहिए था, उसको उसके लेवल का चाहिए। वो जो चेहरा चमकीला, मतलब क्रीम लगा के आई थी, साड़ी अच्छी थी, और फिर वो क्या कहते हैं उसको, गजरा वगैरह। गजरा लगा कर आप क्लिनिक नहीं जाते हो ना ब्रो, हेलो। आई थॉट समवेयर शी इज डिजायरिंग अटेंशन। पुलिस वाला शायद अटेंशन इसको नहीं दे रहा है। ठीक है, बेड एग्रीवेट्स, मतलब जो अभी उसको जो चाहिए था, जिस तरीके का हस्बैंड चाहिए था, जिस तरीके की फैमिली चाहिए थी, वो होने के बावजूद भी इसका खून नहीं बढ़ रहा है। तो जो आरामगाह आपको चाहिए, वेयर यू वांट टू बी कंफर्टेबल, यू गो इन देयर एंड यू डो नॉट गेट द कंफर्ट यू वांट। तो आई टुक बेड एग्रीवेट्स, ओके, ब्रूडिंग condition about one's condition. Simple. This will be right to brooding about one's condition. Business aversion to, company aversion to. क्योंकि कैसे है, तुम क्लास के ग्रुप में तो तुम जाओगे ना एटलीस्ट, हेलो, तुम्हारा जो क्लास का ग्रुप है एटलीस्ट जहाँ पर तुम थे, उसमें तो तुम जाओगे, वहां पर नहीं जा रही है। तो कंपनी एवर्जन टू, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, वो तो बराबर है, सब लोग देख लिया। किसी ने बोला नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Confusion of mind, consciousness, conscientious about trifles. Why did I take this? Because कि सर वो भी तो अकेले है ना, फादर इन लॉ भी तो अकेले है। तो उसको उसका कॉन्शियस उसको गवार नहीं दे रहा था, उसका सत्सत विवेक उसको गवार नहीं दे रहा था कि इनको अभी अपन वृद्धाश्रम में छोड़ डाल दे या हस्बैंड को बोले। देखो, कॉन्वर्सेशन डिजायर सबलाइन टू हियर, मतलब कैसा है ना, वाह, व्हाट डिड शी से, आई कम फ्रॉम अ वेरी डिसेंट फैमिली। वो डिसेंट वर्ड को मैंने दिमाग में रखा था, यहाँ पर उसको डिसेंसी नहीं दिख रही है। डिसेंट इनडिसेंट के अंदर का जो हो गया है ना, ये चक्कर के अंदर ये लड़की पिस गई है। तो यहाँ पर उसको ये दिखा, दिस वाई सेड कि इसको कॉन्वर्सेशन चाहिए, सबलाइन चाहिए, बातें चाहिए। क्योंकि देखो, गजरा लगाना, साड़ी वाड़ी पहनना, ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक पोएटिक टाइप की लड़की है, इसलिए तो वो कहाँ दिख रही है, उसके फूलों की तरफ देखती है, नेचर की तरफ देखती है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं ना, ज्यादातर सेंसिटिव माइंड के होते हैं। किसी ने बोला ना कि दिस शी इज वेरी सेंसिटिव। तो ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, इसलिए उन लोगों को बातें भी फिर वैसी चाहिए होती है। आप समझ रहे हो? ऐसे लोग ऐसे रफ बातें वगैरह ये नहीं कर सकते, उनको नहीं चलता है। तो उन लोगों को ऐसे सबलाइन कॉन्वर्सेशन अच्छा लगता है, कि कैसे ऐसा रहा है ना, बात फूलों की, रात फूलों की, फिर छिड़ी बात रात, क्या है वो? फिर छिड़ी बात रात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। एक ऐसी बात है, एकदम ऐसी माइल सॉफ्ट। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, है ना, वो क्या है वो, एक लड़की, कैसे उसके अल्फाज देखो आप, सारे एकदम शांत, सबलाइन, कूल। ये लड़की ऐसी साज की जो रह रही है, आप समझो ना कि ये एक हैंडसम मैन से क्या चाह रही थी, प्रेम चाह रही है, रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए, और वो चिट 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 कर रहा है। और शी कम्स फ्रॉम अ टीचर्स फैमिली, तो उसका कॉन्शियस वैसे ही जगा हुआ। तो क्या बोले आप, समझ रहे हो? उसको लगा कि अपने सारे सपने जो है वो इधर पूरे हो गए,
जबकि यहाँ पर तो सब ये हो रहा है, ये एफर्ट डाले जा रही है, डाले जा रही है। देखो, डिल्यूजन इंसेन शुड बिकम, ये कितना ये सिंपल रूप आप लोगों ने लिया है, डिल्यूजन इमेजिनेशन इंसेन दैट वन वुड बिकम, राइट? Delusion, he is going out of his mind. Delusion, he is going out of his mind, मतलब क्या, उसके दिमाग से बाहर जा रही है ना। हेलो, चीजें अब उसके दिमाग से बाहर जा रही है। वो कर करके थक के अप्लाई कर करके अब चीजें उसके दिमाग से बाहर जा रही है। डिसकंटेंटेड विद एवरीथिंग, ड्वेल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीमेंट, वही चीजें लेकर बैठी ना, अभी सास ने तकलीफ दी है, इसने दिया है, उसने दिया। देखो, फियर इंसैनिटी वही, फोर सेकंड फीलिंग, हॉटी प्राइड अपने लिए, इंडिफरेंस अबाउट हिज बिजनेस, है ना, नहीं करी ना प्रैक्टिस ज्यादा। एवर जेंटलमेंटल वर्क टू स्टडी, इंडस्ट्रियस मेनिया टू वर्क, देखो डे इन डे आउट में काम करते रहती है। इरिटेबिलिटी, अलोन डिजायर टू बी, है ना। मेडिटेशन डिजायर टू बी, क्या करते हो आप? मैंने फिर भी आपको हिंट दिया था कि मैं बुद्धा केव्स में जाकर बैठता हूँ। व्हाट डू यू डू देयर? यू डू मेडिटेशन। हेलो, तो बैठती ना, इसकी तरफ देखते बैठती है आप, शून्य में देखते बैठना क्या है? एब्जॉर्ब बडीज इन थॉट भी और मेडिटेशन भी है। हेलो, मिस्टेक मेकिंग इन टॉकिंग, मूड चेंजेबल, उसने बताया ये, आई फॉरगॉट टू टेल यू। क्वाइट वांट्स टू बी, रिमोर्स रिपेंटेंस, पश्चाताप होता है। रिस्पेक्ट डिजायर्स, राइट? रिस्पेक्ट थिंग्स ही अर्न्स, है ना, डॉक्टर है, सब कर रही है तो उसको लगता है। रेवरेंस फॉर दोज अराउंडिंग, सबसे प्रेम से रही ना, इतना वो ये रह रहे हैं सास ससुर जी वगैरह, फिर भी हेडेक है ना उसका, ये ससुर जी उसके हेडेक है ना। हेलो, सैडनेस ड्यूरिंग हेडेक, सिटिंग डिजायर टू सिट स्टिल साइलेंट, स्पोकन टू बीइंग एवर जेंटल, ना शांत बैठती है। टैसिटर्न, इंडिस्पोज टू टॉक। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्यों लिया मैंने, क्लियरनेस ऑफ थॉट्स क्यों लिया? बिकॉज शी वांटेड दैट टाइप ऑफ हस्बैंड, शी वाज वेरी क्लियर। एंड पेशेंस, एंड मैंने मेन रूब्रिक आई हैड टेकन वाज डिल्यूजन डिसॉल्विंग शी इज, मतलब उसने अपने आप को वहां पर पूरी तरीके से क्या किया है, डिसॉल्व कर दिया है ना फैमिली में। हेलो, भूल गई ना वो डॉक्टर है। हेलो, कपड़े धोना, आयनिंग करना, ये सब को डॉक्टर करता है। हेलो, अपने आप को उसने वहां पर डिसॉल्व कर दिया है। जो चाहत लेकर आई थी, एक डॉक्टर, एक हॉटी, एक ब्यूटीफुल, अटेंशन चाहने वाली आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक तो और भी ज्यादा श्रृंगार कला के अंदर थोड़ा, बिकॉज उनको तो वो किताबों में है। पर ये अपने आप को इसने क्या कर दिया है, पूरा डिसॉल्व कर दिया है ना। मतलब सबका कर दिया, ससुर जी का, सास का, देवर का, देवरानी का, शोहर का, बच्चों का। हेलो, इसने अपना कुछ पर्सनैलिटी रखा है क्या? हेलो, आर यू विथ मी गाइस? Yes, आर यू yes, विथ sir. मी? शी हैज डिसॉल्व्ड हरसेल्फ टोटली। इतनी डिसऑल्व हो रही कि वो भूल रही है अभी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह। हेलो, मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कि वो काम का भूल रही है, क्लिनिक का भूल रही है, प्रोफेशन का भूल रही है, घर का भूल रही है क्या, हस्बैंड के डिजायर्स को भूल रही है क्या, फादर लॉ की चीजों को भूल रही है क्या, बच्चों को भूल रही है क्या? आर यू नो सर। गेटिंग मी? ये थोड़ा सा देर थिन लाइन, प्लीज अंडरस्टैंड। वो अपने काम का भूल रही है, जो उसका है वो भूल रही है, लेकिन जो बाकी लोगों को करना है वो कर रही है। मतलब शी इज बीन अ बहू, 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 वाइफ, बहू, मदर। हेलो, वाइफ, बहू, मदर, दैट्स इट। उसके अलावा उसकी शख्सियत बस अभी वो रह रही बेचारी, अटेंशन चाह रही है, वो एक चीज बची है उसमें, बस वो एक चीज बची है। वो भी वो अटेंशन के लिए अभी कर रही है, उतनी उसके अंदर की बची है। और क्या चाह रही है वो? सिंपल, एलिमेंट्स फ्रॉम नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, है ना। अप्रिशिएट कर रहा है कोई यहाँ पर इसको, है ना रूब्रिक, हमें मैंने इसको रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। ओनली रेमेडी, ओनली रेमेडी इज हेमेमेलिस, एलिमेंट्स फ्रॉम appreciated not being appreciated, है ना। हेलो, डिल्यूजन appreciated she is not, बट यहाँ पे सच में अप्रिशिएट नहीं हो रही है ये। हेलो, आर यू गेटिंग मी? तो हियर आई थॉट शी वांट्स appreciation, what I thought is that she wants appreciation, that's it.
इतना कर रही है हस्बैंड फिर भी चिट, मतलब हस्बैंड मस्ट बी सो अनग्रेटफुल एंड सो सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड इज व्हाट वी आई फेल्ट एट लीस्ट for whatever she said. And mind you, she has not presented herself to be एकदम ऐसी नहीं है. She was sober. मेरे को उसको देख के लगी यार सोबर है, तो मेरे दिमाग में फिर एटम का, स्टेफी सेग्रिया, दल का मारा, ऐसे क्लासी टाइप ऑफ लोग आने लगे. एंड देन आई थॉट कि यार ये हमें मेलिस भी हो सकती है, एकदम सोबरिटी है. और देखो मैंने कैसे पकड़ा, सोबर प्रेजेंटेशन कमिंग फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली. व्हाट शी सेड, आई कम फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली. आजकल ग्रुप पे क्या चलता है कि खैके खुकू इसकी उसकी बातें चलती है. तो मतलब इसकी जो जोन है, इसका जो प्रांत है, वो सोबर वाला है, लिटरेचर वाला है, उस तरीके का क्लास है इसका ऐसा. क्योंकि उसको देखकर मुझे मतलब कभी को कल्पना कविता सूझ जाए इस तरीके का उसका. वो कौन सा पिक्चर था वो, इजाजत में की रेखा की मेरे को याद आई. हेलो, इजाजत सिनेमा देखा आपने? नहीं देखा तो देख लेना. लिव इन रिलेशनशिप पे उस वक्त गुलजार साहब ने मूवी लिखी थी. उसके अंदर रेखा जी का रोल आप देखना. मुझे एक्चुअली रेखा जी की याद है कि ऐसे लंबे बाल, वो साड़ी में बैठी हुई, वो अपना तानपुरा लेकर वो गाना गा रही है. बहुत प्यारा. कौन सा वो गाना है, मुझे भी ना, कौन सा गाना है, खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी. बहुत प्यारा गाना है, आप देखना. वो ये रेखा जी मेरे नजर में आई उनको देखकर. अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि वो जोन जो होता है ना, पेशेंट को कौन से कैटेगरी का पेशेंट है, उस तरीके से फिर आपको वो रूब्रिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर सिम्टम्स आपको मिलेंगे, फिर आपको सिम्टम का इवेल्युएट करने में बहुत मदद होगी. आप यू टेक सिम्टम्स. आई एम नॉट सेइंग टू बी अ रियली ग्रेट प्रैक्टिशनर, डोंट बी दैट. You keep taking symptoms. There is something called analysis, there is something called evaluation. So in analysis we keep taking rubrics. We take 20, 25, sometimes we take 5, 7 rubrics, but we analyze it. देखो आप माइल्डनेस के अंदर आप फंस गए होते, क्योंकि माइल्डनेस में ये नहीं है, हेमिमेलिस है कि नहीं है. देखो माइल्डनेस में हेमिमेलिस है, ऑफ कोर्स, चलो थैंक गॉड, ये ट्रैप से आप बच गए. बट मेरी मेहरबानी करके आप ये रूब्रिक्स थोड़ा सा ना, क्या बोला हनुमान साहब ने, SSUP, स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, यूनिक, पिक्यूलियर ऑफ दैट पर्सन. शी वाज नॉट बीइंग माइल्ड विथ मी. हेलो, कैसे डॉक्टर साहब आप, सर ये देखिए ना, मतलब ऐसे मेरे हस्बैंड ऐसे. माइल्डली कहाँ पे इशारी ब्रो, कम ऑन. तो आप मत लीजिए ये माइल्ड यील्डिंग है रूब्रिक, आप थोड़े से बचिए इनसे. आप ना भी बहुत सेट ऑफ रेमेडीज से आप हट जाओगे. बोला प्लीज, आई एम टेलिंग यू, दीज आर ट्रैप्स, इसमें मत फंसिए. प्लीज ये ट्रैप से मत फंसिए. कोर रूब्रिक की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, कोर रूब्रिक की तरफ जाने की कोशिश कीजिए प्लीज. जैसे पेशेंस बहुत अच्छा आपने पकड़ा माशाल्लाह से, ठीक है, पेशेंस बहुत अच्छा पकड़ा आप लोगों ने, लेकिन उसको भी थोड़ा वक्त लगता है ना आपको. आप अब्यूज में अटक जाते थे, बराबर ना. हेलो, आप लोग अब्यूज में अटकते थे. तो मैं क्या बता रहा हूँ कि कोर क्या है, कि भैया ये बोल रही है, ये बैठी हुई है, ये क्या चाहती है. देखो हम लोग क्या कह लेते हैं ना कि पेशेंट किस चीज से नाराज है, क्या चाहता है. सिंपल ना. रिलेशनशिप में आप क्या देखते हो, ये क्या चाहता है, ये किस चीज से नाराज है, क्या चाहता है. जैसे अभी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, तो हम लोग, हस्बैंड बीवी अगर रूठ के चली गई है, बीवी झगड़ा करी, तो हम लोग पूछते हैं कि क्या चाहते हैं भाई, क्या चाहती तेरी वाइफ, पूछ तो एक बार. ये हस्बैंड चिट चिट कर रहा है तो क्या चाहता है, पूछ तो एक बार. तो what that is why I said what women want. The want starts from desire. Desire becomes want after some time. It becomes a must. When it starts affecting, then it's a want.
अब ये लेडी के अंदर एप्रिसिएशन जो है, एप्रिसिएशन, सबलाइमिटी, और क्या चाहिए उसको, एक डिसेंट फैमिली चाहिए, डिसेंसी चाहिए, ये उसकी वांट है अभी, उसके कारण उसका ब्लड अब कम हो रहा है, शी इज ब्लीडिंग, हेलो, शी इज ब्लीडिंग, her hemoglobin is not increasing at all. Now her hemoglobin after MML is, I started with 30 as always, I started with 30 and then I went to 1 immediately after that. After 15 days she was a little better, but still sir अभी भी वो भूलना वगैरह वैसा ही है, चिड़चिड़ वगैरह थोड़ी कम हुई है. But then I said I gave 1M and I gave 1M and bro, hemoglobin 13 हो गया उसका 2 महीने में, 2 महीने में 13 हो गया उसका, फाइब्रॉइड भी चला गया, मस्त एकदम. शी टोल्ड हर हस्बैंड कि योर फादर इन लॉ नीड्स हेल्प, he told it in a way, and इन लोगों ने फादर इन लॉ का भी ओल्ड एज होम में रखा है, एंड दे स्टार्टेड ट्रीटमेंट साइकेट्री में. बोला मेरी ट्रीटमेंट लो, तो नहीं ठीक है, वो पुलिस वाले अपन ज्यादा मगज भाई नहीं करते हैं, मतलब ठीक है भाई. वो उसने बोला था ना उसको कि ये क्या बात है तूने डॉक्टर को बताई, है ना, तो उसके लिए फिर मैं तो उनसे बात ही नहीं किया ये बात में, है ना, ठीक है, वो तो सेक्रेटरी होते हैं ना इस मामले में. दिस इज द केस. थैंक यू वेरी मच. एनी क्वेश्चंस? Good afternoon. हाँ. So, as far as we understand, hemamelis or desire expected to be is when the person has achieved or is at a stake of level where she has done so much in her life, or he has achieved so much, then he's not being respected. And there Not was nothing necessarily. in the case. Acha, that's what you felt. But she's been doing so much, my child. She's been doing so much for the family. So, if we concise the whole case, and as far as I perceived it, I felt she is in a very wrong, poor, pathetic condition. She is unable to retaliate or do much because of her situation. So, she is under a very poor condition, delusion poor, and she is being trapped because she thought he is a handsome, young, charming guy who would give me a beautiful life. And there was a trap, and she is being wrong, suffered, and she is in a poor pathetic state now and delusion trapped. So I was going towards Salix. Salix presence. Yes, And sir. she, Means you I thought don't- that she's entered in her own trap. Of her desires. Good thinking. Very good thinking. But so see, because we Anupama, can't take so many rubrics and we do not follow Murphy's. So we try to put things the way we perceive the case. no follow. I am telling you, there had been teachers who've been telling whose addition is this, whose addition is that. No, I am telling you, if something is coming in repertory, it does have importance. I do not see whose addition is this. This is very racist thinking, you know, of the teachers, of doctors also. It's very racist. He only take from Kent. There are people now who say ki start with antisoric, Master Hahnemann, from coming from okay, using master word for Hahnemann, Dr. Hahnemann is okay. But then coming from only the chronic disease, there are only 30, 25, 35, some odd antisoric remedies are written. And they say ki start only with these remedies. I said, no, come on. There are 4,000 odd remedies in homeopathy now. It's a science. Come on, it's not a religion. It's not a religion. No, don't treat things like religion. Religion is just religion is also not ultimate. It is only directive to evolve and be human, okay, and take care of the nature and save the earth from destruction and save humanity from destruction. Okay, so it's a very racist thinking. Not to follow this repertory, not to follow. Please, Anupama, I am not calling you being racist, beta, but it is very racist of us to think. Absolutely no, you are at the means you are having all the latest versions, so we don't have access to that You thing. So have that beta. I'll send you the link. How to get that? I'll send you the link. It's there free on net also. See, Anupama, what I'm trying to tell you, beta, is how did I go to the repertory? How do I analyze
how do I try to understand? How do I evaluate the case? Is the language of the patient, okay, the presentation of the patient, the words that they use are very important. Please, what she said, I come from a very decent family. Nowadays ये लोग अभी कैसा है हु करते हैं सर ग्रुप पर, मतलब उसको कैसा चाहिए, उसको सोबर बातें चाहिए, आप समझ रहे हो? तो मैं वहां से आई इवेंट कि इसको बातें कैसी चाहिए, इसको कॉन्वर्सेशन चाहिए, इसको खैके खुके बात नहीं। देखो कॉन्वर्सेशन डिजायर्स बोला है ना, मेरे इसमें रूब्रिक है। कॉन्वर्सेशन की क्या होता है ना, हम लोग डायलॉग करते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं अनुपमा, है ना, हम Yeah. लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और कॉन्वर्सेशन जब आप और हम दोस्ती के लेवल पर आ जाएंगे, या फिर इफ यू कम टू माई क्लिनिक और इफ यू कम टू माई कॉन्सर्ट, ओके, देन देयर विल बी कॉन्वर्सेशन बिटवीन अस। हेलो, Yes, जब हम yes, लोग sir. चाय पर बैठते हैं, सपोजिंग वी गो ऑन डेट सिंपली, तो हम लोग कैसी बात करते हैं, है ना? हम लोग चाय लेते हैं, वी हैव ब्लैक टी, वी टेक अ कप ऑफ सिप ऑफ, आई मीन अ ग्लास ऑफ वाइन समटाइम्स। हम लोग कैसी बात करते हैं वहां पर, वो हो गया कॉन्वर्सेशन। आप समझ रहे हो? एक कॉन्वर्सेशन है, एक आर्ग्यूमेंट है, एक डिस्कशन है ना, एक वर्बल इंटरकोर्स है ना, क्या कहते हैं उसको, तो वो डिस्कोर्स, ये चीजें जो है ना, यहां से आप शब्दों का चयन शुरू करो अनुभव। यू स्टार्ट यूजिंग द रूब्रिक्स, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ द वर्ड बाय लिसनिंग टू द पेशेंट। ये कौन से कैटेगरी में आता है, पहले तो मैं यही समझा रहा हूं आपको कि एनालिसिस इवेल्युएशन में क्या होता है ना, आपको पहले कैटेगरी समझनी होती है पेशेंट कि अगर चाहिए ट्रैप में आती ना, देखो ट्रैप में इंसान छटपटाता है। डिड शी ट्राई टू मूव फ्रॉम द ट्रैप अनुपमा? Oh, no, sir. दिस इज वेयर ट्रैप गोज। इग्नेशिया सुसाइड करने की कोशिश करेंगी, सैलिक्स झगड़ेगी, ये हस्बैंड से झगड़ ही नहीं रही है, तो ये ट्रैप के अंदर छटपटा नहीं रही है ना, ये ट्रैप से निकलने की कोशिश कहाँ कर रही है? यहां से ट्रैप वाला रूब्रिक मेरा निकल गया बेटा, मतलब वो दिमाग में भी नहीं आया क्योंकि पहले इसने कुछ कोशिश ही नहीं की है। आप पहले तो ट्रैप में आप थोड़ी कोशिश करोगे निकलने की, अगर आप जिंदा हो तो। आप इतने जल्दी डिस्करेज नहीं, मतलब आप गिव अप नहीं करते हो। ट्रैप में कौन जाएगा, एनिमल जाएगा? हेलो, आपका एनिमल इंस्टिक्ट आपको ट्रैप में लेकर जाएगा या आपका भोलापन आपको ट्रैप में लेकर जाएगा, दोनों भी चीजें हैं। लेकिन आप Yes. भी तो कोशिश करोगे निकलने की, आप बेक करोगे, है ना, क्या कहते हो, बेक स्टिल और आप गिड़गिड़ाओगे, आप लालच देने की कोशिश करोगे, आप, बराबर है ना, या आप रिटेलिएट करोगे। इसमें तीनों भी रिएक्शन नहीं थे ट्रैप में से निकलने के। अंडरस्टूड? दैट इज Yeah. वेयर, that is why I did not think of delusion tract here. Now you understood. Now delusion poor, please do not take here. Pathetic, not really pathetic yet, because अभी भी देखो ना, शाइनी स्किन, डस्की कॉम्प्लेक्शन, लेकिन शाइनी स्किन है, मतलब वो क्रीम लगा क्या ये, बाल वाल अच्छे थे, वो गजरा लगा क्या ये, पथेटिक नहीं है अभी भी ये। और पुअर तो बिल्कुल नहीं है, आप समझ रहे हो? पुअर इज शॉर्ट ऑफ समथिंग, यहाँ पर तो इसको समाधान नहीं है बेटा। पुअर में क्या होता है, शॉर्ट ऑफ समथिंग होता है, प्लीज रिमेम्बर। मतलब पुअर में होता है लेकिन कम होता है। पुअर का आप वो एक वर्ड याद रखो, थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, जिंदगी मगर कितनी खूबसूरत, वो गाना याद रखो, थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, दैट इज पुअर। हेलो, Yes, sir. Like, you are excellent in all the subjects, but you are poor in mathematics. एग्जैक्टली, मतलब नॉट नेसेसरीली एक्सेलेंट बट आई पास बाबा, मतलब आई एम पुअर इन मैथमेटिक्स, आई स्कोर लाइक 45-50 मार्क्स एंड otherwise I scored 60. I am an average student but I'm poor in maths. Not necessarily that you are excellent, but you feel the shortness of something. You feel the shortness of something. Okay? You are understand, मतलब मुझे ये चीज समझ में आया कि एटलीस्ट तुम्हारी एम्पथी इसमें से निकली, ये अच्छी बात है। एम्पथी से ही सोचना शुरू करो, बहुत मजा आता है। बिकॉज मैं एम्पथी से सोचता हूँ, इसलिए मेरा फिर सेंटिमेंट जागे होते हैं, इसलिए मेरे को सही अल्फाज भी मिल जाते हैं समझने के लिए। तो आप लोग सबसे पहले तो अल्फाज से प्यार करना शुरू करो, तो फिर आपको अल्फाज के सही मायने पता चलेंगे। यू विल अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, दैट read between the line, read the line, read beyond the line, read what exactly is the meaning of that word.
That is why we take metaphors, right? Metaphor मतलब we do not stretch it anywhere. Like, I mean, come on. इसके माँ को सांप के सपने आते, इसके लिए बेटे को लैकेसिस दो, वो वाला नहीं करते. We do not stretch it like nonsense. That can be called nonsense. All right, we do not stretch that, but we try to understand the core meaning also of the word. You know that we should give justice to every word is what I say. We should give justice to every word. Put meaning in your sentences. Please remember. इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि रख के अल्फाज में हुनर बोलो, रख के अल्फाज में हुनर बोलो, जो भी बोलो मगर कम बोलो, है ना? तो तभी फिर आपके शब्दों को मजा भी आता है, तभी आपके शब्दों में मजा भी होता है ना. अब देखो, जान एक शब्द में कविता मानसी के नहीं, मंजू है ना आज की host, उसके परमिशन से एक कविता, ये अभी आपने बोला तो कैसे समझना है शब्दों को कि जान मुझे जब जान कहती हो तो जान चली जाती है. कितना मस्त एक जान शब्द है. जान मुझे जब जान कहती हो तो जान चली जाती है, नींद भी आती है तो ख्वाबों के साथ चली जाती है. हेलो, समझ रहे हो ना? शब्दों को आप अगर उस तरीके से लोगे ना तो मजा आएगा. तुम अपने जुल्फों में शबनमी सितारे पिरोते हो क्या? तुम अपनी जुल्फों में शबनमी सितारे पिरोते हो क्या? झटकती हो जब जुल्फ अपनी तो जान चली जाती. देखो कितना मस्त लगता है शब्दों को अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो. हेलो. Yes, of course. या सो प्लीज whatever लैंग्वेज इट इज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, गुजराती, whatever, उसको आप प्लीज उस शब्द को उसके गहरे मायने तक समझने की कोशिश करो. और हर शब्द का एक प्रांत भी होता है. एवरी वर्ड हैज अ डिफरेंट रीजन. आप लोग उसको जोन कहते हो आजकल, है ना? तो वो कौन से रीजन, अभी सबलाइम कहाँ से आएगा? सबलाइम किसी गुंडे के तो आएगा नहीं, किसी झगड़ालू के इसमें तो आएगा. हेलो, आप समझ रहे हो? सबलाइम किसके आएगा? रिमोर्स है ना, उसको गुस्सा, उसको बुरा भी लगता है ना, मतलब बोलती है तो नहीं बाबा, बोले मैं बोल देती हूँ, गुस्सा करना मेरे को अच्छा ही लगता है सर. तो रिमोर्स में भी है, अगर आप देखोगे तो ये वो कैटेगरी वाला है. इसको रिपेंटेंस नहीं, रिमोर्स है. हमें इसको रिमोर्स होता है. हमें इसको रिस्पेक्ट चाहिए. हमें इसको ऑनर वुंडेड में नहीं है. हमें इसको ऑनरेबल नहीं समझता है अपने आप को. जैसे स्टैफी सगरे अपने आप को मैन ऑफ ऑनर समझता है, फिर स्टैफ में ईगो आएगा. ऑनर कहाँ पर आएगा? जब आप में ईगो है. हेलो, योर ऑनर मतलब ईगो है, आपका एक ईगो है कि भैया मेरे को, आई एम अ डिग्नेटरी, तभी तो डिग्निफाइड में स्टैफी सगरे है. आई एम अ डिग्नेटरी, समझ रहे हो? तो वैसा बिहेव करेगा ना वो. हर जगह पे ऐसा ऐसा जगह ना स्टैफ. हाँ हाँ हाँ, नमस्ते सर, सर कैसे? हाँ हाँ हाँ. तो सल्फर जैसा सर कैसे जरा. तो वो ऐसा बिहेव करेगा ना अपना स्टाफ, ऐसा ऐसा, क्योंकि अपने आप को डिग्निटी समझा, डिग्निफाइड समझेगा. बहुत मैं बाबा, मैं स्टेज पर ही बैठता हूँ, मैं तो मैं नहीं जाता हूँ. तो वो वाला फिर वो, आप उस तरीके से, फिर मैं बता रहा हूँ कि वो कैटेगरी कौन सी होती है उसकी. कैटेगरी कौन सी कैटेगरी का है ये बंदा, वो आप समझिए. ओके, मेरा प्रवचन शुरू हो जाता है. थैंक यू वेरी मच. मंजू, यू कैन वाइंड इट अप बेटर. इट्स 4:15 hours, more than an hour. I thought to finish the lecture in half an hour. Yes, Manju. Pranita, you want to say something? Thank you so much for all your extra inputs. Most welcome, beta. Yes. Manjari is not there. Thank you very much, guys, for being there. And yeah. Yes, Mansi, you want to say something? Yes. Thank you so much, sir, for such an insightful lecture. हेमा मिलिस का आज अलग क्या बोल सकते हैं, अलग शेड देखने को मिली. So this was the takeaway from today's lecture. Conversation sublime, that would be remember in our minds, and we will definitely use it in our practice. So thank you so much. Thank you everyone for joining. Thank you my team PHF. Thank you very much. Thank you. Thank Thank you. you. God bless you.